अस्सलाम वालेकुम, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की है। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस मुबारक सुनन इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर ऑफिस में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि इंतखाबी अमल के लिए रायदही मुनक्किद होने वाली है। इस सिलसिले में मुकम्मल इंतजाम को खतयत दी गई है। 13 मई को हल्के पार्लिमान निजामाबाद में जुमला 17,04,867 राय दहिंदे अपने हक रायदही से इस्तेफादा हासिल करेंगे। निजामाबाद पार्लिमानी हलके के रिटर्निंग ऑफिसर व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और कमिश्नर पुलिस ने कलेक्टर ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार और रिटर्निंग ऑफिसर व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पोलिंग और गिनती के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया और हर वोटर से इस माह की 13 तारीख को होने वाली पोलिंग में हिस्सा लेने और अपने हक रायदही का आजादाना इस्तेमाल करने की अपील की। 13 मई को रायदही के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे के अलावा दीगर तमाम इंतजाम को खतियत दे दी गई है और बताया कि 144 सेक्शन नाफिज किया जा रहा है। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए हैं। रैली, जलसा, जुलूस को मुनक्किद करने की इजाजत नहीं रहेगी और आवाम में बदनज़मी पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राय दहिंदे सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक हक राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोमवार May 13th పోలింగ్ జరుగుతుంది. May 12th రేపు ఆదివారం డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనకి 7 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ లో కూడా డీసెంట్రలైజ్డ్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ పాయింట్ మనకి పోల్ టైమింగ్ అనేది 7 AM to 6 PM వరకు ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యింది. ఇనిషియల్ గా మనకి 7 to 5 ఉండేది. దాన్ని 6 PM వరకు 1 hour అనేది మనకి ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. అదే విధంగా సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి ఏదైతే 48 hours బిఫోర్ సైలెన్స్ పీరియడ్ ఉంటుందో P-1 అంటే పోలింగ్ డేకి ఒక రోజు ముందు అండ్ అగైన్ పోల్ డే రోజు ఎవరైనా క్యాండిడేట్స్, పొలిటికల్ పార్టీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటే మనకి ప్రింట్ మీడియాలో ముఖ్యంగా ఇచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆర్ స్టేట్ లెవెల్ MCMC పర్మిషన్ తోనే ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే 12th వచ్చే మనకి న్యూస్ పేపర్ అవ్వచ్చు, 13th వచ్చే పేపర్స్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మనకి విత్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ స్టేట్ లెవెల్ MCMC ప్రియర్ పర్మిషన్ తోనే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకి ఈ లాస్ట్ 72 hours నుంచి కూడా మనము ఇప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ మానిటరింగ్ గురించి టీమ్స్ కూడా పెంచడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనకి ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ ఈ 7 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ లో 21 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్, 22 చెక్ పోస్ట్ ఉన్నాయి. ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ ముఖ్యంగా నైట్ టైమ్స్ లో మనము డబుల్ చేస్తున్నాము ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. నైట్ టైమ్స్ 42 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. మనకి టోటల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ 1808 పోలింగ్ స్టేషన్స్, టోటల్ ఓటర్స్ 17,04,867 టోటల్ ఓటర్స్. మనకి టోటల్ రూట్ పెట్రోలింగ్ పార్టీస్ 144 పెట్రోలింగ్ పార్టీస్ని డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. అవి కాకుండా ఆఫీసర్ డివైఎస్పీ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ ర్యాంక్కి సంబంధించినటువంటి పెట్రోలింగ్ పార్టీస్ ఒక 50 వరకు డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ పెట్రోలింగ్ చేస్తూ ఎక్కడైనా ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఉంటే అటెండ్ చేస్తారు. ఇప్పటివరకు నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యూన్సీ చెప్పమంటారా, డిస్ట్రిక్ట్ చెప్పమంటారా, సీజర్స్ ఇప్పటిదాకా మనకి
నోటిఫికేషన్ అయినప్పటి నుంచి మొత్తం 4,39,45,000 మొత్తం క్యాష్ మరియు వస్తువులు సీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యూన్సీలో. దీంట్లో 3,05,35,000 క్యాష్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. 24,64,300 రూపాయలకి విలువైన 5,000 లీటర్స్ లిక్కర్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. 3,65,000 విలువైనటువంటి 14 కేజీ గాంజాని సీజ్ చేయడం జరిగింది. 29 లక్షలు విలువైన 2 కిలోలు బంగారంని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా 76 లక్షలు విలువైన వేరే ఈవీస్ వస్తువుల్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन बैरस के बिल और बाजीगढ़ी गवर्नर ने बोधन के मजाफती इलाकों में पुरजोर इंतखाबी मुहिम चलाई. उन्होंने आवाम से सेकुलर अक़दार को जमहूरी रिवायत के लिए वोट देने की अपील की. इंतखाबी मुहिम के इख्तितामी मरहले के दौरान BRS के हल्के पार्लिमान निजामाबाद के उम्मीदवार बाजीगढ़ी गोवर्धन ने बोधन मंडल के मुख्तलिफ मौजाजात में तेज रफ्तार इंतखाबी मुहिम चलाई. इस मुहिम की निगरानी आयशा फातिमा इंचार्ज हल्का असम्बली बोधन BRS ने की. इस मुहिम में ZP चेयरमैन D विठल राव, साबिक MLC विजय गौड़ और दीगर ने हिस्सा लिया. इस मौके पर बाजीगढ़ी गोवर्धन ने कहा कि हमको इस वक्त ये तय करना है कि मुल्क जमहूरी व सेकुलर अक़दार पर गामजन रहे या फिर मुल्क डिक्टेटरिज्म की तरफ रवा दवा हो. बीजेपी और उसकी मुआफिक तंजीमें चाहती है कि मुल्क की आवाम को उनके हुकूक से अक्सर महरूम कर दिया जाए. रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और मुल्क को सरमायादार अफराद के हाथों कठपुतली बनाने की कोशिश की जा रही है. बाजीगढ़ी गोवर्धन ने कहा कि कांग्रेस ने साबिक में अचानक ही इंतखाबी मैदान छोड़ दिया और इस तरह बीजेपी के रास्ते हमवार हुए. अब भी बेशतर कांग्रेसी कायदीन बीजेपी के लिए नरम गोशा रखते हुए काम कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को रास फायदा हासिल हो सकता है. तेलंगाना बिलखसूस निजामाबाद में कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त देने के लिए संजीदा नजर नहीं आती. लिहाजा बीजेपी को यकीनी शिकस्त से हमकरार करने के लिए BRS की तायीद लाजमी है. बाजीगढ़ी गोवर्धन ने याद दिलाया कि असेंबली इंतखाबात में इटला राजेंद्र, बंडी संजय, G अरविंद और रघुविंदर जैसे बीजेपी के कद्दावर लीडर्स को BRS ने ही शिकस्त दी थी और अब भी बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त देने की अहलियत सिर्फ BRS के पास ही है. उन्होंने BRS को कामयाब बनाने और उनके हक में वोट देने की अपील की. इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल आरी कराई जाएगी. पुलिस माहौल सियानती इंतजाम कर रही है. पंजाब में फ्लैग मार्च के बाद ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल का बयान. तेलंगाना रियासत में 13 मई को होने जा रहे लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर आज भैंसा पुलिस का ITBP इंडो तिब्बत सरहदी पुलिस के हमरा भैंसा शहर के सब डिविजनल पुलिस दफ्तर से एक फ्लैग मार्च निकाला गया. ये फ्लैग मार्च मार्केट एरिया, जुल्फिकार गली, पांडरी गली, पुराना बाजार, खाजी गली जैसे मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए वापस पुलिस सब डिविजनल दफ्तर पहुंचा, जहां पर इस फ्लैग मार्च का अख्तिताम अमल में आया. इस मौके पर भैंसा एडिशनल SP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 13 मई को तेलंगाना रियासत में लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर आज ITBP सरहदी पुलिस के हमरा एक फ्लैग मार्च निकाला गया है और लोकसभा इंतखाबात को पुरअमन बनाने के तौर पर भैंसे में वसी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और इस फ्लैग मार्च का मकसद लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना था ताकि वो आजादाना तौर पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सके. इस फ्लैग मार्च में भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर D राजा रेड्डी, ITBP कमांडेंट अश्विनी, सब इंस्पेक्टरान के अलावा ITBP पुलिस 40S SP जवानों की कसीर तादाद मौजूद थी. ITBP जवान एंड DSSP लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो मेन पर्पज़ इसका इलेक्शन का ही फोकस है. अभी 13 तारीख को डे आफ्टर टुमारो इलेक्शन है. सब फोर्स इलेक्शन के लिए आया है. तो ये रूट मार्च के थ्रू एक ही मैसेज देना रहता है हर बार कि सब लोग फोर्स पहुँचे पुलिस के पास, सब लोग पीसफुली अपना वोटिंग कीजिए. कोई भी फ्री एंड फेयर मैनर में पुलिस फुल ट्राई करने वाली है और वैसे ही लास्ट टाइम की जैसे पीसफुल इस बार भी इलेक्शन हो जाएगा. पुलिस के पास बहुत फोर्स है और जो भी अगर कोई धमका रहा है किसी को तो पुलिस के पास इमीडिएटली अप्रोच कीजिए, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेते. और जो भी आपको इलेक्शन में कुछ भी पैसे दे रहा है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें दे रहा है जिससे आप कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, इमीडिएटली पुलिस और MCC टीम को कॉन्टेक्ट कीजिए. आज हमारे साथ इधर अश्विनी साहब आए हुए ITBP के कमांडेंट कंपनी कमांड में. भैंसा में कत्ल की एक खौफनाक वारदात पेश आई.
एक नौजवान ने दो नौजवानों पर चाकू से हमला किया, जिसमें एक नौजवान शदीद जख्मी जबकि दूसरा फौत हो गया। जुमे की रात निर्मल जिले के मुस्तकिल में एक वहशियाना कत्ल का वाकया पेश आया, जिसमें एक नौजवान लड़के की बरसर मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही निर्मल पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर उसको निर्मल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की तफसीलात के मुताबिक 3 नौजवानों में जाती वजूहात की बिना पर लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें एक नौजवान लड़के की मौत वाक़ हुई। चिकरपल्ली के जीशान और बुधवार पेट के मतीन पर समीर नामी नौजवान ने चाकू से हमला किया। इस हमले में जीशान नामी नौजवान की बरसरा मौका ही मौत वाक़ हो गई, जबकि दूसरा नौजवान मतीन जो कि जख्मी हुआ था, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी तो उसे सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। समीर जिसने कत्ल की वारदात अंजाम दी थी वो मफरूर है। पुलिस की जानिब से समीर पर कत्ल की वारदात का केस अंजाम देते हुए उसकी तलाशी का आगाज कर दिया गया। बहस के नौजवान कायद शेख शब्बू ने अपनी बेरस वफादारी को खत्म करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने महेश कुमार गौड़ और पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। शेख छोटू हरकियाती नौजवान कायद BRS पंचायत डिवीजन 58 जो साबिका BRS रुकनी असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता के करीबी रुफका में शुमार किए जाते थे, आज BRS पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए PCC वर्किंग सदर व MLC महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। शेख छोटू हरकियाती नौजवान कायद ने बताया कि आज सुबह 8:30 बजे PCC वर्किंग सदर व MLC महेश कुमार गौड़ की क़यामगाह पर पहुंचकर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस मौके पर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी, सिटी सदर कांग्रेस केशु वेनु, साबिक MLC अर्किला नरसर रेड्डी, साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद साबिर अली, कायदीन मोहम्मद एजाज अहमद, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद परवेज के अलावा दीगर मौजूद थे। खबलाजी बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने शेख छोटू को खड़वा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। बाद अज़ां शेख छोटू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में किए गए वादों को अंदरून 100 यौम अमली जामा पहनाने के लिए जारी इक़दामात से मुतासिर होकर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर शेख रहीम छोटू ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर निजामत कांग्रेस पार्लिमानी उम्मीदवार TG1 रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए आवाम से घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम के जरिए कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की जा रही है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।